اور خدا کا کلام اسی آیت مبارکہ کے اوپر ہے جو اس چینل کا مقصد ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پاسٹر شکیر صاحب کو کہ وہ آئے اور کلام اپنا جو ہے وہ کلام پیش کریں جو بائبل میں سے ہے اس چینل کا مقصد، کیونکہ وہ آیت جو بیسک جو کنسیپٹ ہے یا مقصد ہے اس چینل کا کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پاسٹر شکیر صاحب سامنے آئے اور اپنے الفاظ جو ہیں وہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر شکیر صاحب۔ اچھا، جتنے بھی بہن اور بھائی ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، سبوں سے التماس ہے کہ وہ اب کلام کو سننے کے لیے خاموشی اختیار کریں، تاکہ ہم خداوند کی آواز کو سننے والے ہیں تو ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ زیادہ ٹائم نہیں، صرف 15 منٹ۔ جن بہنوں کے پاس بچے ہیں وہ ان کو 15 منٹ کے لیے کنٹرول کریں تاکہ ہم عاجزی و انحصاری کے ساتھ خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام خدا کی طرف آئیں، ہم خدا کے کلام کے لیے زوردار تالی لگائیں گے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ابھی سر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ نیٹ کا دور ہے، تو اس دور میں جیسا کہ انسان بہت سی سہولیات حاصل کر چکا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو انسان گھر بیٹھ کر ہی کیا کر رہا ہے جی، ایکسپٹ کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے، ان کو میرے عزیزو مکمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزو یہ جو وقت ہے یہ تیزی کا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ اخیر زمانہ ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ اخیر زمانہ ہے، تو اس میں بہت کچھ ہوگا۔ اگر خدا کا کلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو شیطان نے بھی کام ایسے کر دیے ہوئے ہیں کہ انسان اس میں پھنسا ہوا ہے، مگر آج ہم لوگوں کے لیے کلام مقدس میں سے ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے جو آج ہم سننے کو ہیں، جو آج ہم اپنے لیے اس کو اپنانے کو ہیں۔ تو میری جیسا کہ ہم آج کے دور میں بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ حاصل بھی کرتے ہیں، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مگر میری انسان پھر بھی غافل ہے۔ انسان پھر بھی کیا ہے جی؟ غافل ہے۔ کس سے جی؟ خدا کے کلام سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میری خدا کا کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہمیں تازگی دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہمیں تندرستی دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہمیں اپنی زندگی دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ جیسا کہ ہمارا جو مین مقصد، جو ہماری مرکزی آیت، جو ہمارا موٹو ہے وہ کیا ہے جی؟ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، کیونکہ ابن آدم، میرے ساتھ بول رہے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ ہماری مرکزی آیت ہے۔ اسی آیت پر ہم نے خدا کے اس پلیٹ فارم کو، اس نیٹ ورک کو لے کر جو ہم آئے ہیں، تو آگے بھی بڑھیں گے تاکہ ہم سب جو کہ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب جو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، تو اس لیے کلام خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ابن آدم کون ہے۔ بہت سے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہت سے بزرگ ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، ان کو ابن آدم کا نہیں پتا کہ کون ہے، ابن آدم کون ہے، مگر کلام خدا ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ ابن آدم کون ہے جی؟ خدا کا بیٹا، گاڈ آف سن۔ کس کا بیٹا جی؟ خدا کا بیٹا۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے میری کہ یسوع مسیح ناصری جو کہ ابن آدم ہے، وہ جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے، کن کو ڈھونڈتا ہے جی؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے۔ تو آئے میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے نکالیے، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا
19 बाब और उसकी हम एक आयत से लेकर मेरे 10 आयत मुबारक तक इसको पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ, संजीदगी के साथ सुनिएगा खुदा के कलाम को। मेरे जो खुदा के कलाम में लिखा कि जिनके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। अब कान हम सभी रखते हैं, कान हम सबों के हैं, मगर ये किन कानों की बात हो रही है? रूहानी कानों की बात हो रही है। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा के कलाम को रूहानी आंखों से नहीं देखेंगे, रूहानी कानों से नहीं सुनेंगे, जब तक हम खुदा के कलाम को रूहानी पहलू से नहीं देखेंगे, हम इसको अपना नहीं सकते, हम इस पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला है। यीशु मसीह नासरी क्या है जी? इब्ने आदम। मेरे साथ रहना है, 10 मिनट के लिए मेरे साथ रहना है, तवज्जो के साथ हमने खुदा के कलाम को सुनना है। मेरे जो इसमें जिंदगी है, जिंदगी मेरे पास नहीं है, किसी और इंसान के पास नहीं है, किसी पास्टर के पास, किसी पादरी के पास, किसी के पास नहीं है। सुनिए आज इस बात को, जिंदगी किसके पास है? मेरे साथ रहना, किसके पास है? खुदा के पास है, इब्ने आदम के पास है। इब्ने आदम कौन है जी? खुदा का बेटा है। तो इसलिए मेरे जो इब्ने आदम कहां से मिलता है? कलाम में से, बाइबल में से, किताब मुकद्दस में से। खुदा का बेटा यीशु जो आप पर मेरा क्या है? रहबर है, रहनुमा है, वो बचाने वाला है, फिदिया देने वाला है। मेरी चीजों उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया है पता है? अपनी जान तक दे दी है। आज हमें पहचानने की जरूरत है, किसको? इब्ने आदम को। किसको पहचानने की, जाने की जरूरत है जी? खुदा के बेटे यीशु को। तो आए मेरे साथ निकालिए किताब मुकद्दस में से, मुकद्दस बुजुर्ग लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19 बाब और उसकी हम पहली आयत मुबारक से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है जी, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकाई नाम एक आदमी था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो जी। सभी कहें जी आमीन। हमारी जो मरकजी आयत है मेरे अजीजों, वो है 10 आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। अब देखिए मेरे अजीजों, जकाई जो है वो छोटे कद का है। कैसा है जी? वो छोटे कद का है, वो कोई इतना ज्यादा लंबे कद वाला नहीं है। अब देखिए मेरी इतनी ज्यादा भीड़ है, और भीड़ में से अब देखिए कि जो जकई है वो किसको देखने का मुश्ताक है? जी मेरे साथ रहने, किसको देखने का मुश्ताक है? इब्ने आदम को। किसको जी? इब्ने आदम को देखने का मुश्ताक है। खुदा के बेटे को देखने की वो चाहत रखता है, मगर वो देख नहीं सकता। तो उसने क्या किया जी? किस पर चढ़ गया जी? पेड़ पर चढ़ गया। अब जब वो पेड़ के दरख्त पर चढ़ गया है, पेड़ पर चढ़ गया है, तो मेरे गूगल के पेड़ पर तो होता क्या है मेरे जो? तो यीशु को देख लेता है। अब इब्ने आदम की नजर किस पर पड़ती है? किस पर? बहुत ज्यादा भीड़ है, किस पर जी? जकई पर। तो मेरी जो होता क्या है कि जब इब्ने आदम उसको देखता है, खुदा का बेटा यीशु जकई को देखता है, तो होता क्या है मेरे जो? यीशु उसको बुलाता है, किसके पास? अपने पास बुलाता है। आज भी आप और मुझे इब्ने आदम बुला रहा है। हालेलुया। मेरे जो हम भी खो चुके हैं जकई की तरह, अगर वो महसूल लेने वाला था, तो आज हम अपनी फिक्रों में, आज हम मेरे अजीजों अपने बिजनेस में, आज हम बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें खो चुके हैं, मगर इब्ने आदम हमें तलाश कर रहा है, इब्ने आदम हमें ढूंढ रहा है। क्योंकि मेरे अजीजों कलाम खुदा फरमाता है, कलाम खुदा में लिखा है जकई क्या है जी? छोटे कद का है, महसूल लेने वाला है, माशरे में रद्द किया हुआ है, गुनहगार है। मगर मेरी देखें इब्ने आदम ने क्या किया है? उसको आवाज दी, अपने पास बुलाया कि आज मैंने कहां पर जाना है? तेरे घर में जाना है। कहां पर जाना जी? तेरे घर में जाना है। तो मेरी आज भी हमें भी जरूरत है खुदा के बेटे यीशु, इब्ने आदम की जरूरत है। अगर हम खो चुके हैं, दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, हम ऐसे कामों में खो चुके हैं, तो खुदा का बेटा यीशु हमें पुकारता है, इब्ने आदम हमें बुलाता है मेरे जो, क्योंकि ये कलाम का फैसला है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आए। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। तो मेरी चीजें देखिए कि यीशु मसीह नासरी ने मनादी शुरू की, अपने बाप के कलाम को लेकर जब लोगों तक जाता था, तो मेरे से क्या कहता था जी? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। इब्ने आदम आप लोगों के पास आ चुका है। आज हमें जरूरत है, इसकी जरूरत है जी?
इब्ने आदम की, खुदा के बेटे यीशु की जरूरत है। तो मेरी जरूरत देखिए जो कि हमारी मर्ज की आयत है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आए। अब जबकि ज़कई जो है मेरी इज्जत वो गुनाहगार है, मसूल लेने वाला है, मसूल लेने वालों को सरदार है, दौलतमंद है। रोमी हुकूमत के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। किसके लिए जी? रोमी हुकूमत के लिए। उस वक्त की जो हुकूमत थी रोमियों की थी, उनके लिए वो काम कर रहा है। तो मेरी जो होता क्या है कि कई जो है वो माशरे से कट किया गया है, वो माशरे से रद्द किया गया है। क्यों? क्योंकि मसूल लेने वाला है। तो मेरे वो कोई अच्छा ओहदा नहीं रखता, वो कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि क्या था जी? वो गुनहगार था। तो इसलिए मेरे जब इब्ने आदम ने उसे देखा तो क्या कहा कि ऐज गई नीचे आ जा, मैंने तेरे घर में जाना है। कहां पर जाना जी? तेरे घर में जाना है। तो मेरी आज भी इब्ने आदम हमारे घरों में आना चाहता है, इब्ने आदम हमारी जिंदगियों में आना चाहता है। मगर मेरी हम जो मैंने पहले बताया ना, खो चुके हैं, खोए हुए हैं। क्या लिखा जी? इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात लेने आया है। तो इसलिए मेरी ज़कई को क्या किया जाए? यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तेरे घर में जाना है। तो कहां पर जाता है जी? इतनी सारी भीड़ में से कहां पर जाता है? ज़कई के घर में जाता है। मेरी चीजों जब उसके घर में जाता है तो ज़कई खुश होता है। खुशी के मारे क्या करता है? अब दौलत को वो दौलत नहीं अपनी समझ रहा। हालेलुया। क्या कर रहा है? अपनी दौलत को कहता है कि मैं इसे बांट दूंगा। मैंने जिनसे 1 गुना लिया उनको 4 गुना लौटाता हूँ, वापस करता हूँ, उनको अता करता हूँ। क्यों? क्योंकि इब्ने आदम मेरे घर में आ गया है, खुदा का बेटा यीशु मेरे घर में आ गया है। तो आज भी मेरे जब इब्ने आदम खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होगा, हमारे घरों में होगा, तो मेरी हमें भी ज़कई की तरह क्या मिलेगी जी? जिंदगी मिलेगी। कौन सी जिंदगी जी? अबदी जिंदगी। क्योंकि वो अबदी जिंदगी देने का इख्तियार किसके पास है? उसके पास है। वो अबदी जिंदगी देने का इख्तियार रखता है। तो इसलिए मेरी यहाँ पर हमें कलाम खुदा में से ये चीज मिलती है कि अगर ज़कई को खुदा ने जिंदगी दी है तो हम भी उसके बेटे बेटी हैं। हम किसके लहू के खरीदे हुए जी? शाबाश, मेरे साथ रहना। किसके लहू के जी? इब्ने आदम के लहू के खरीदे हुए। हम यीशु मसीह के लहू के ब्लड के खरीदे हुए मेरे से। तो इसलिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जो इब्ने आदम है, आप और मुझे क्या कहता है जी? आवाजें देता है। अगर हम कहीं पर खो चुके हैं, हम कहीं पर भटक चुके हैं, अगर हम खोए हुए हैं, तो डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि कलाम खुदा हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, इस बात से आगाह करता है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। तो मेरे निजात किसके पास है जी? शाबाश, किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास है, इब्ने आदम के पास है। तो आज घबराने की जरूरत नहीं। 2000 साल पहले अगर यीशु मसीह दुनिया में था तो आज भी वो हमारे साथ है। तो आज भी वो हमें पुकारता है, आवाजें देता है, हमें पीछे से बुलाता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, ऐ मेरी बेटी मेरे पास आ जा। क्योंकि मेरे पास क्या है? हमेशा की जिंदगी है। तो हमेशा की जिंदगी का वारिस कौन है जी? खुदा का बेटा यीशु है, इब्ने आदम है। तो आज हमें मेरे इज्जत परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए हम इस विजन को लेकर, हम इस प्लेटफॉर्म को लेकर, हम इस नेटवर्क को लेकर मेरे इज्जत दुनिया में निकले हैं, ताकि खुदावंद क्या करे जी? अपने इस नेटवर्क के वसीला से क्या करे जी? अपने कलाम की बढ़ोतरी के वसीला से क्या जी? लोगों को अपने पास लेकर आए। हम खुदा के लोगों को उसके कलाम के वसीला से उसके पास लेकर आए, क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला है। मेरे जो कलाम खुदा हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है कि इब्ने आदम जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, मेरे जो हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। जब हम मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास, इब्ने आदम के पास है। तो मेरी इज्जत परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे चल के किताबी मुकद्दस में ये बताती है, हुकूमतें, फरिश्ते, रियासतें, हर एक चीज का इख्तियार किसके पास है? इब्ने आदम के पास है, खुदा के बेटे यीशु के पास है। तो मेरी इज्जत हम बादशाहों के बादशाह की अगर औलाद हैं, अगर उसको चाहने वाले हैं, अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, तो फिर मेरे जो परेशान होने की बात नहीं। अगर खो चुके हैं कहीं पर, तो कलाम खुदा हमें तसल्ली देता है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और
नजात देने आया है। तो इसलिए आज जो हमारा मोटो है, जो आज का हमारा थीम है, जो हमारा मकसद है, जो हमारा आज का मेरे अजीजों यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है, तो आप लोगों को ये संदेशा है, ये बुलावा है किसका, इब्ने आदम का, कि अगर हम कमजोर हैं कहीं पर तो मेरे अजीजों परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि कलाम खुदा बताता है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। बशर्ते कि हम गुनाहगार हैं, बशर्ते कि हम खुदा से दूर हैं, मगर मेरे अजीजों हम उसके ब्लड के खरीदे हुए हैं। वो हमें क्या देता है जी, तसल्ली देता है, वो हमें इत्मीनान देता है कि मैं तुम्हारा बचाने वाला हूँ, मैंने तुम्हारे लिए फिदिया दिया है। तो मेरे अजीजों कलाम खुदा जो कि आपका और मेरा मेरे अजीजों रहनुमा है, किताब मुकद्दस जो हमें हर एक चीज के बारे में आगाह करती है, हमारी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, मेरे अजीजों दुनियावी रूहानी हर एक पहलू में आगाह करती है। तो इसलिए हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, मगर इब्ने आदम क्या है जी, जोर आवर है। इब्ने आदम क्या है जी, जोर आवर है, वो बचाने की कुदरत रखता है, उसके पास इख्तियार है, हर एक चीज का इख्तियार है मेरे जोर, हर एक चीज का इख्तियार है। क्योंकि इब्ने आदम क्या करने आया जी, खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। तो आज मेरे जो कलाम खुदा हमें ये तसल्ली देता है, कलाम खुदा हमें इत्मीनान देता है, इस बात से आगाह करता है कि हमने अगर अबदी जिंदगी हासिल करनी है, अबदी जिंदगी पानी है, अगर हमने अपने आप को हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराना है, तो फिर किस चीज की जरूरत है जी, किसकी जरूरत है हमें, इब्ने आदम की, किताब मुकद्दस की। तो मेरी आज जैसा कि यहाँ पर हमारा अकट करना, ये रूहानी मेल मिलाप करना, ये इब्ने आदम के ही वसीला से था। ये किताब मुकद्दस जो आप लोगों को पढ़कर सुनाई गई है, ये जो सब कुछ आप लोगों के सामने आया बयान किया गया है, तो मेरे अजीजों ये सब किसके लिए है जी, इब्ने आदम के लिए, ताकि हम उसको जान सके, ताकि हम उसको पहचान सके। तो मेरे अजीजों आज खुदा का बेटा यीशु जो कि हम सबों का शाफी है, जो हम सबों का बचाने वाला है, जो हम सबों का रहनुमा है, रहबर है, मेरे अजीजों उसके बगैर मुखलस ही नहीं है, उसके बगैर मेरे अजीजों जैसा कि जिसे फरदौस कहते हैं, जिसे जन्नत कहते हैं, उसमें जाना नामुमकिन है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो इसलिए इब्ने आदम जिंदगी में होना जरूरी है, खुदा का बेटा जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला, ये मेरा नहीं, किसी इंसान का नहीं, किसी आलम का, मुअल्लम का, किसी और का नहीं, किसका है जी, किताब मुकद्दस का फैसला है, ये खुदा के कलाम का फैसला है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने हैं। तो खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत दे जी, आमीन जी। यकीनन आपने खुदा